डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था और उसमें हमने ये बताया था कि जहाँ तक कल मकबूल इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी का ताल्लुक़ है, इसमें हम क्या कुछ पढ़ाते हैं। तो वो इंट्रोडक्टरी का क्लास हमारा हुआ है। तो आज हमने ग्रामर से शुरू करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना चाहिए कि ग्रामर क्या है। व्हाट इज़ ग्रामर? ग्रामर इज़ अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। किस मकसद के लिए? फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग अ लैंग्वेज। किसी ज़बान के बोलने के लिए असूलों का जो हम एक बुनियादी ढांचा इस्तेमाल करते हैं, एक निज़ाम इस्तेमाल करते हैं, दैट वेरी सिस्टम इज कॉल्ड टू बी व्हाट? ग्रामर। और ग्रामर में आज हमने क्या कुछ शुरू करना है? ग्रामर में हमने शुरू करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या शुरू करना है? सो पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कम टू नो व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या भला? सो वर्ड्स आर डिवाइडेड into various groups, into various parts, into various categories, into various classes. किस लिहाज से? According to the function they do in a sentence. इनके इस्तेमाल के लिहाज से। So these groups, these classes, these categories or these parts are called to be what? Parts of speech. So अल्फाज को हमने इस्तेमाल के लिहाज से मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया है। Words are divided into various parts. Various groups, various categories or various classes. So these groups किस लिहाज से? According to the function, according to their function. इनके फंक्शन के लिहाज से they do in a sentence, जो फ़िक्रे में करते। So these groups, these parts, these classes are called as what? Parts of speech. How many parts of speech are there? So according to the old grammar there were 9 parts of speech, but according to the new grammar there are 8 parts of speech. How many parts of speech are there? There are 8 parts of speech. So the first one is called to be what? Yes? Noun. Very good. The first one is called to be what? Noun. What is noun? Simply we can define noun to be a naming word. What is noun? A naming word is called to be noun. A naming word is called noun, means कि हर नाम देने वाला जो भी लफ्ज़ है उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, असद, चेयर, टेबल, स्कूल, city, all these words are called to be nouns. Why? Because all these words are the naming words. So we can simply say that all these words are called to be what? Noun. The second one is called to be what? Pronoun. Pronoun. What is pronoun? It is the combination of 2 words. Pronouns. So what is pronoun? A word that is used instead of noun is called to be what? Pronoun. हर वो लफ्ज़ जिसको हम असल नाम की बजाय इस्तेमाल करते हैं, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? That is called to be pronoun. क्या लिखूं? A word that's used instead of a noun. असल नाम की बजाय जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, that very word is called to be what? Pronoun. अब सवाल ये पैदा होता है कि सर that's why that we are using another word instead of that very real noun. कि असल नाम की बजाय हम कोई दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। That's why. Because
टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, नाउन के बार बार दोहराने से बचने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। क्यों? लेट सपोज मैं कहता हूं ना, असद इज माई स्टूडेंट, असद गो टू कॉलेज, असद रीच देयर, असद प्लेस देयर, असद डू दैट, असद डू दैट। सो बार बार असद के दोहराने से आदमी तंगरे जाता है। सो दिस वाई अब असद की बजाय मैं क्या के इस्तेमाल करता हूं? असद इज माई स्टूडेंट, he goes to school, he goes to college, he reads there। अब he है, she है, I है, we है, you है, they है, all these words are called to be what? Pronouns, because all these words are used instead of that very real noun. So the next one is called to be what? Verb. Verb. What is verb? Simply we should say an action word is called to be what? Verb. हर हरकत वाला, लेकिन that is not a complete definition. That is why, because बाज़ औक़ात ये जो verb होता है वो एक्शन को शो नहीं कर देता है, स्टेट को भी शो कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ना, she seems very pretty, he looks very nice। सो अब लुक्स है, सीम्स है, इसमें कोई हरकत नहीं है कि है। अब हमने वर्ब की डिफिनीशन कैसे कंप्लीट करना है? एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड नाउन, वर्ब, एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। मीन्स कि हर हरकत वाला जो लफ्ज है उसको हम वर्ब कहते हैं, लेकिन ये कंप्लीट डिफिनीशन नहीं है। अब हमने इसको कंप्लीट करना है। मीन्स verb shows an action or state। मतलब यह है कि या तो हरकत को शो कर देता है या क्या शो कर देता है? हालत। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं ना, I write। अब राइट क्या है? हरकत है ना, एक्शन है ना। अब she seems वेरी प्रेटी। अब यहां पर सीम्स क्या है? दिखाई देने में तो कोई वो नहीं है, हरकत नहीं है। क्या शो कर देता है? हालत को शो कर देता है। सो वी कैन कंक्लूड दैट वर्ब शोज एन एक्शन और स्टेट। या तो एक्शन को शो कर देता है या क्या शो कर देता है? स्टेट को शो कर देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो क्या है? एडजेक्टिव है। क्या? एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? शाबाश। एडजेक्टिव को उर्दू में हम इसमें सिफत कहते हैं। और एडजेक्टिव हर वो लफ्ज़ होता है दैट मोडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के मतलब में क्या कहलाता है? इजाफा लाता है। सो सिंपली मैं क्या लिखूं? अ वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड टू बी व्हाट? एडजेक्टिव। A word that adds something to the meaning of noun or pronoun is called adjective। जो किसी नाउन या प्रोनाउन के मतलब में इजाफा लाता है उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? दैट वेरी वर्ड इज कॉल्ड टू बी एडजेक्टिव। लेट्स सपोज मैं कहता हूं ना, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। अब यहां पर कोई ऐसा लफ्ज लगाओ जो इस बॉय के मतलब में इजाफा लाए, दैट्स व्हाई बिकॉज बॉय इज अ नाउन। अब मैं लिखता हूं ना, ही इज अ टॉल बॉय, he is a great boy, he is a good boy, he is a nice boy, he is a bad boy। मेरिट या डिमेरिट जो भी शो कर देता है,
सो ये सारे वर्ड्स हमारे साथ क्या है, वेदर दे आर, दैट इज टॉल, or that is big, that is small, that is short, that is sharp, that is intelligent. So all these words are called to be adjectives. Why? Because all these words modifies a noun or pronoun. क्योंकि ये सारे words जो है ना किसी noun या pronoun के मतलब में इजाफा लाते हैं. So जो भी word noun या pronoun के मतलब में इजाफा लाता है, हर उस word को हम क्या कहते हैं, that very word is called to be what? Adjective. इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो हमारे साथ क्या है, एडवर्ब है. क्या है, एडवर्ब. एडवर्ब तो सिंपल है ना, इसका एक फंक्शन ये है कि इट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. दूसरा फंक्शन क्या है, एडजेक्टिव. तीसरा फंक्शन क्या है, और अनदर एडवर्ब. सो व्हाट इज एडवर्ब? A word that adds something to the meaning of a verb, adjective, or another adverb. इसका एक फंक्शन ये है कि ये किसी वर्ब के मतलब में इजाफा लाएगा. फॉर एग्जाम्पल वहां पर मैंने क्या लिखा था, आई राइट. क्या लिखा था, आई राइट. अब कोई ऐसा लफ्ज लगाओ जो इस राइट के मतलब में इजाफा लाए. हाँ शाबाश लगाओ. स्लोली, आई राइट स्लोली, आई राइट क्लियरली, आई राइट क्विकली, आई राइट प्रिसाइजली. सो क्विकली, स्लोली, प्रिसाइजली, ऑल दीज वर्ड्स आर modifying that very word, and that very word is what? That is a verb, and the modifier of a verb is called to be what? Adverb. It's adverb. दूसरा हमने लिखा है कि ये किसी adjective के मतलब में भी इजाफा लाता है. लिखा है ना. सो यहां पर मैं लिखता हूं ना, he is a good boy. तो यहां पर good हमारे साथ क्या है, adjective है. अब हमने कुछ ऐसा लफ्ज लगाना है यहीं पर जो गुड के मतलब में इजाफा लाए. हाँ शाबाश लगाओ. यस वेरी गुड. सो यहां पर मैं क्या लगाता हूं, ही इज अ वेरी गुड बॉय. अब वेरी हमारे साथ क्या है, एडवर्ब है. क्यों एडवर्ब है, क्योंकि ये गुड के मतलब में इजाफा लाता है. और गुड हमारे साथ क्या है, गुड हमारे साथ एडजेक्टिव है. सो वी कैन सिंपली से दैट व्हाट, वेरी इज एन एडवर्ब. तीसरा हमने क्या लिखा है, क्या अनदर एडवर्ब एज वेल, कि ये किसी दूसरे एडवर्ब के मतलब में भी इजाफा लाता है. जिस तरह के यहीं पर मैंने लिखा, क्या लिखा है, आई राइट स्लोली. अब स्लोली हमारे साथ क्या है, एडवर्ब है. अब यहीं पर मैंने क्या लगाना है, एक ऐसा वर्ड लगाना है जो स्लोली के मतलब में इजाफा लाए. क्या, मोर स्लोली, लेस स्लोली, आर द सेम, वेरी स्लोली. तो वेरी भी हमारे साथ क्या है, एडवर्ब है. क्यों एडवर्ब है, क्योंकि ये इस एडवर्ब के मतलब में इजाफा लाता है. सो सिंपली हम कह सकते हैं कि एडवर्ब वो लफ्ज होता है जो किसी वर्ब के मतलब में इजाफा लाता है, एडजेक्टिव के मतलब में इजाफा लाता है, या किसी दूसरे एडवर्ब के मतलब में इजाफा लाता है. क्लियर है. अगला जो हमारे साथ है दैट इज प्रीपोजिशन. दैट इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. यू सी, प्रीपोजिशन, प्री मीन्स बिफोर, पोजिशन मीन्स स्टेट. तो ये कौन सा लफ्ज हो सकता है, दैट शोज द पोजिशन, द स्टेट. सो सिंपली वी कैन डिफाइन प्रीपोजिशन, अ वर्ड that's used before a noun or pronoun, जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है. एक तो इसके लिए कौन सा शर्त है, ये. दूसरा शर्त क्या है, किस मकसद के लिए, टू शो इट्स रिलेशन with the remaining part of the sentence.
तो प्रीपोजिशन का काम यह है कि यह किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा और उसी नाउन या प्रोनाउन का जिससे पहले वो इस्तेमाल हुआ है ताल्लुक बताएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं ना, पेन इज ऑन द टेबल, इसमें प्रीपोजिशन क्या है हमारे साथ? ऑन, शाबाश। क्यों है? क्योंकि ये इस नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है। इस नाउन का ताल्लुक बताता है किस नाउन के साथ? इसके साथ। सो लिहाजा हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि ये ऑन हमारे साथ क्या है? प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है? कंजंक्शन। व्हाट इज कंजंक्शन? फर्स्ट में हम कहते हैं कि दैट इज वेरी कंजंक्ट इशू, हाँ, कि ये बहुत क्या है? कंजंक्ट इशू। अब कंजंक्शन क्या है? अ जॉइनिंग वर्ड। सिंपली क्या लिखो? अ जॉइनिंग वर्ड। अब जॉइनिंग वर्ड से क्या मुराद है? जॉइनिंग वर्ड से मुराद यह है कि इट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। या तो ये टू वर्ड्स को आपस में मिलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ना, 2 and 2 makes 4, 2 and 2 make 4, 2 और 2 क्या होते हैं? अब यहां पर 2 और 2 को मिलाने वाला लफ्ज जो है वो क्या है? एंड है। तो एंड हमारे साथ क्या है? कंजंक्शन है। या टू फ्रेजेस को मिलाते हैं आपस में। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता ना, अ गोल्डन चेन और अ सिल्वर रिंग शुड बी ब्रॉट। तो यहां पर गोल्डन चेन एक फ्रेज एंड सिल्वर रिंग अनदर फ्रेज, इन दोनों को आपस में मिलाने वाला लफ्ज क्या है? दैट इज और। तो और हमारे साथ क्या? कंजंक्शन है। इसके बाद ये टू क्लॉजेस को भी आपस में मिलाता है। आई गो टू स्कूल बट आई डोंट रीड देयर। तो यहां पर आई गो टू स्कूल, आई डोंट रीड देयर, इसको मिलाने वाला लफ्ज क्या है? बट। तो बट हमारे साथ क्या है? दैट इज कंजंक्शन। तो इसके बाद टू सेंटेंसेस को भी इस तरह आपस में मिलाता है। इसके बाद हमारे साथ जो लास्ट वन है दैट इज इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। व्हाट्स इंटरजेक्शन? यू नो, हम इंजेक्शन को इंजेक्शन कहते हैं, वही, बिकॉज इट इंजेक्ट समथिंग इनटू आवर बॉडी, क्योंकि ये हमारे वजूद में कोई चीज, एंड इट्स कॉल्ड टू बी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स के इट गोज इनटू द इनर सेल्फ एंड फ्रॉम देयर इट एक्सप्रेसेस समथिंग। सो हाउ शुड आई डिफाइन नाउ? अब मुझे किस तरह इसकी वो करना चाहिए, डिफिनेशन करना चाहिए? इंटरजेक्शन वो लफ्ज होता है जो सम सडन और स्ट्रांग फीलिंग्स की एक्सप्रेशन करता हो। क्या कर देता हो? एक्सप्रेशन। सो क्या लिखो? अ वर्ड that expresses some sudden or strong feeling is called interjection। बात समझ में नहीं आई तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, होरा वी हैव won the match। तो यहां पर यह खुशी का इजहार करता है। कौन सा लफ्ज? होरा। इसके बाद अलास, आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंड, आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई हैव लॉस्ट माई बुक। तो यहां पर अलास किस चीज का इजहार करता है? गम का। अब हैरानगी का, वाओ व्हाट अ नाइस कार इट इज, व्हाट अ नाइस बिल्डिंग इट इज, व्हाट अ नाइस, you know, so all these words are called to be what? Interjections. So these were parts of speech. There were 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adjective, preposition, interjection, all these. So इंशाल्लाह आप हमारा साथ दीजिए। आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ नाउन से लेकर ये सारे अक़साम 1 by 1, और स्पेशली ये एक तोहफ़ा है अल मकबूल इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी की तरफ से। इंशाल्लाह आप लोग हमारा साथ दीजिए। आपको बहुत इस्तेफ़ादा करने वाली लेक्चर्स इंशाल्लाह इसी जमशेद साहब के आईडी पे मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग to me so carefully. Thanks one again.